चलो स्टार्ट करें। कौन कौन से टेस्ट हो गए थे लास्ट ब्रिक्स के? ब्रिक्स के टेस्ट करवा दिए थे मैंने आपको, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, टफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट और कौन सा करवाया था, और डायमेंशन टेस्ट, ये करवा दिए थे। अब अभी और टेस्ट होंगे, उसी टेस्ट के बेस पे ही क्लासिफिकेशंस होंगी एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, जिसमें हर ब्रिक्स की जो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको डायमेंशन टेस्ट तो आपको एक उसकी लिमिट याद करनी है, तो वो चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे आज। चलो नेक्स्ट टेस्ट लिखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट देखो, इसमें दिस टेस्ट प्रोवाइड अ This test provide a base for comparing the quality of bricks. This test provide a base for comparing the quality of bricks, but is of little use. In determining the strength of masonry. Which primarily depends upon the mortar. मोटार हो गया ना अपना, मोटार कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट, फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, for testing of bricks, compressive strength from a sample, compressive strength from a sample. The two bed faces of bricks are the two bed faces of bricks are grounded to provide grounded to provide smooth even parallel surface, smooth even and parallel surface. नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिक्स are then immersed in water at room temperature. The bricks are then immersed in water at room temperature for 24 hours. These are then taken out of water. These are then taken out of water and
surplus water on the surface and surplus water on the surface is wiped off. The frog of the brick is flushed. The frog of the brick the frog of the brick is flushed level with cement mortar. Flushed level with cement mortar and the brick is stored under damp jute bags for 24 hours followed by its immersion in water at room temperature. At room temperature for 3 days. Next. हो गया. Next is the specimen is placed in compression testing machine. The specimen is placed in UTM machine. UTM लिख दो, पूरा लिख दूं? लिख लो यार. Universal testing machine. The specimen is placed in universal testing machine with flat faces horizontal. With flat faces horizontal and mortar filled face being upward. क्या? Filled face. Flat faces horizontal. And mortar filled face being upward. ठीक है. नेक्स्ट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लोड इज अप्लाइड at uniform rate of 14 Newton per mm square per minute. याद करना है क्वेश्चन है भी. अप टू फेलियर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम लोड एट फेलियर is used to give compressive strength. Used to give compressive strength. हो गया. नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके इक्वल है? कंप्रेसिव
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी इक्वल है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड एट फेलियर, मैक्सिमम लोड एट फेलियर टू दी एवरेज लोड अपॉन एरिया स्ट्रेंथ आ जाता है, एवरेज एरिया ऑफ बेड फेसिस, एवरेज एरिया ऑफ बेड फेसिस डिवीजन mm²। ठीक है, नेक्स्ट द एवरेज ऑफ रिजल्ट शैल बी रिपोर्टेड, एवरेज ऑफ रिजल्ट shall be reported। The compressive strength of any individual brick, the compressive strength of any brick of any the compressive strength of any brick should not fall below the average value, average compressive strength, minimum average compressive strength, minimum average compressive strength average compressive minimum average compressive strength। ठीक है, specified for the corresponding class, specified for the corresponding class, for specified for the कौन सी क्लास बोली? specified for the corresponding class, corresponding class। चलो लिख लो जो अब रह गया कुछ, एक पॉइंट लिख लो बस, एन एवरेज ऑफ 6 ब्रिक्स, कम से कम आपको एवरेज 6 ब्रिक्स का लेना होगा, एवरेज ऑफ एन एवरेज ऑफ 6 ब्रिक्स इज टेकन हेयर, बस इज, चलो ये सारी कहानी है। और कोरस्पॉन्डिंग क्लास के बाद एक और बात लिख लो, मोर देन 20% और लिख लो इसके आगे, यहाँ लिखो मोर देन 20%। अभी समझाता हूँ इसका मतलब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज मोर देन 20%। चलो ठीक है, चलो अब समझो इसको। अब सबसे पहले आपने यहाँ जाके क्या करना है, आज यूट्यूब पे आपने जाते ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है ब्रिक का, जिसमें क्या करते हैं, ब्रिक को प्लेस करते हैं, ऊपर नीचे बेड लगाते हैं और ऊपर से लोडिंग करते हैं। वो कितनी करते हैं? 14 न्यूटन पर एम पर मिनट के हिसाब से। तो एक जनरल यूटीएम मशीन का आपको सबको पता ही है, हर सब्जेक्ट में आता है, सोम में भी आता है, आरसीसी में आता है, हर एक किसी सब्जेक्ट में आता है। तो एक जनरल बता दिया आपको, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर आपको ब्रिक लगा के ऊपर से लोड लगाया जाता है दोनों तरफ से, और जो बेड है उसको बेड को बोल रखा है, वो जो ऊपर प्लेट लगा रखी है आपने, ठीक है। इसके अंदर समझो इसको, दिस टेस्ट प्रोवाइड अ बेस फॉर कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। अब ये जो टेस्ट है वो क्या करता है, दो ब्रिक्स की क्वालिटी को कंपेयर करता है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट बताया बट इज ऑफ लिटर यूज, बस इसका यूज कम है, इसका लिटर यूज है इन बट इज ऑफ लिटिल यूज इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मेजनरी। अब इसका यूज मेजनरी की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में कम है, क्यों? अब मेजनरी की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? मैसनरी की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? वो मोटार पे डिपेंड करती है। तो अब इसमें क्या, इसका कोई काम थोड़ी हुआ, इसमें तो बहुत कम यूज हो गया इसका। अल्टीमेटली तो मोटार ले लेगा उसकी स्ट्रेंथ, जो बीच में क्या फिल करोगे, जब मैसनरी करोगे तब उसमें क्या होगा, मोटार ले लेगा उसकी। तो मैसनरी, इसमें मोटार का ज्यादा रोल आ जाता है बजाय कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का। तो बस इतना ही करता है ये, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की टेस्टिंग करता है, किसकी ब्रिक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, ये कहानी करता है। नेक्स्ट बताया फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, अब ब्रिक को टेस्ट करना आपने, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रॉम अ सैंपल, द टू बेड फेसेस ऑफ ब्रिक्स आर ग्राउंडेड टू प्रोवाइड अ स्मूथ इवन पैरेलल सरफेस। इसने ये बता दिया अभी आपको दो बेड के सरफेस स्मूथ कर लेंगे, जिसके ऊपर प्लेस करना है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बताया द ब्रिक्स आर देन इमर्ज्ड, उसका क्या करोगे, ब्रिक्स को क्या करोगे, उसका बेड तैयार कर दिया, अभी आपने लोडिंग नहीं करी, उसको क्या कर देंगे आप, उसके बाद क्या करोगे, ब्रिक्स आर देन इमर्ज्ड, क्या करोगे, रूम टेम्परेचर पे उसको क्या करोगे,
इमर्स करोगे पानी के अंदर 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट, दीज आर देन टेकन आउट ऑफ द वाटर एंड सैंपल इज क्या लिखा, सैंपल इज वाटर ऑन द सरफेस इज, अब जो सरप्लस वाटर, सॉरी, दीज आर टेकन आउट ऑफ द वाटर, ये है सरप्लस, सरप्लस ही लिखा होगा, ये सरप्लस, जो ऊपर पानी आ जाएगा, तो ये हम क्या करोगे, उसको पानी से बाहर निकालोगे, जो ऊपर पानी है उसको वाइप ऑफ कर दोगे, वाइप ऑफ मतलब वाइप कर दोगे इसको। नेक्स्ट बताया, द फ्रोग ऑफ द ब्रिक इज फ्लश्ड लेवल विद सीमेंट मोटार। अब क्या करोगे, अब फ्रोग होगा, बीच में गैप होगा, उसमें फ्रोग को क्या करोगे, मोटार से फिल कर दोगे, उसको सेम लेवल पे ले आओगे। द फ्रोग ऑफ द ब्रिक इज फ्लश्ड लेवल विद सीमेंट मोटार एंड ब्रिक इज स्टोर्ड अंडर द, अब फिर उस ब्रिक को क्या करोगे, डैम्प जूट बैग्स, जो बोरियां होती हैं उसको, उसे ढक देते हैं हम लोग, ठीक है। डैम्प जूट बैग्स कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, समझ गए। एंड फॉलोड बाय, उसके बाद क्या कर दोगे, उसको इमर्स करोगे दोबारा से रूम टेम्परेचर पे 3 दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्यूरिंग करते हैं, अल्टीमेटली क्यूरिंग कैसे करते हैं, अरे क्यूरिंग करते हैं ना, जब नया मकान बनता है तो बोरियां घेरते हैं पानी की, ताकि उसमें वो गीला रहे, वो स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप हो जाए उसके अंदर, तो वही प्रोसेस किया है। नेक्स्ट, द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन, उसका स्पेसिमेन को क्या करोगे आप, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसको क्या करोगे, डालोगे, एंड विद फ्लैट सर्फेसिस हॉरिजॉन्टल एंड मोटार फील्ड कर दोगे, मोटार फील्ड फेसिस बीइंग अपवर्ड, मोटार जो फिल किया है वो ऊपर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट बताया, लोड इज अप्लाइड एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट कितना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कितना इसमें 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। अब इसको कंपेयर कर लेना सीमेंट की स्ट्रेंथ से, हर एक की स्ट्रेंथ से इसको कंपेयर करते जाना, जब सवाल करेंगे तो इसको कंपेयर करके याद रखना है अपने को। नेक्स्ट बताया, द मैक्सिमम लोड एट द फेलियर इज यूज्ड टू गिव द, जो मैक्सिमम लोड आएगा, वो क्या देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है, मैक्सिमम लोड एट फेलियर, जितना लोड मैक्सिमम लोड लगा टू दी एवरेज एरिया, जो बेड का एरिया है, जो भी एवरेज एरिया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बताया, द एवरेज ऑफ रिजल्ट शैल बी रिपोर्टेड, जो उनका रिजल्ट आएगा, एवरेज जो रिजल्ट आएगा उसका, जो 6 ब्रिक्स लेंगे अपन उसको रिपोर्ट करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक, किसी भी ब्रिक का शुड नॉट फॉल बिलो दी मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो मिनिमम वैल्यू है उससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 6 ब्रिक्स ली हुई हैं आपने, 6 की एवरेज निकाली, हर एक ब्रिक की मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना बात। तो किसी भी ब्रिक की वो कम नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, 6 ब्रिक लेते हैं। और नेक्स्ट बताया, इसका शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द स्पेसिफाइड फॉर कोरस्पॉन्डिंग क्लास। अब क्लास मैंने आपको बताई थी 12.5, 15, वो सारी क्लासेस लिखवा रखी हैं, 35 तक लिखवा रखी हैं, बीच जितनी उसकी क्लास है उसके मतलब आप कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है उसकी मोर देन 20% तक आ सकती है। जैसे 12.5 है तो उसकी 15 न्यूटन पर m² तक आ सकती है। कहने का मतलब 20% तक उसकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ सकती है। ये सारी कहानी समझ गई बात। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जाके क्या करोगे, यूट्यूब पे एक बार टेस्ट देख लेना इसका, ठीक है। कुछ नहीं है, ब्रिक लगा रखी होगी, ऊपर प्लेट लगा रखी होंगी, टेस्टिंग कर रहे होंगे, बस ये सारी कहानी। उसकी जो अंदर की कहानी है वो सारी लिखवा दी मैंने, जो सवाल बनाएंगे इसके। चलो नेक्स्ट टेस्ट। अब ये वाली लाइट ऑन कर दो, ये बंद कर दो। नेक्स्ट टेस्ट, अब आ जाओ वारपेज टेस्ट। अपने ये क्या हो गया, आपने बंद करके दी आपकी, ये कैसे बंद होगी, वो अपने आप ही बंद होगी ये खराब होगी फिर। हाँ हाँ अभी चल तो रही थी। अरे ये लाइट बाहर वाली लाइट चल रही है, देखना ये अंदर वाली चल रही है, अंदर वाली चल रही है, अंदर वाली बंद कर दो और बाहर वाली चसाओ। अरे यहीं से होगा सब कुछ। हाँ अब यहां वाली होगी, आपके यहां की बाहर की है। हाँ आ जाओ, चलो हो गया। नेक्स्ट टेस्ट इज वारपेज टेस्ट। वारपेज टेस्ट, चलो वारपेज टेस्ट देखते हैं। अब स्टार्ट करो। वारपेज क्या होती है बताई थी ना आपको, जो कर्व हो जाती है, बताई थी। ब्रिक ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, बताई थी। चलो वारपेज ऑफ ब्रिक्स, वारपेज ऑफ ब्रिक्स measured with the help of warpage of bricks measured with the help of flat steel or glass surface
हेल्प ऑफ फ्लैट स्टील और ग्लास surface, flat steel or glass surface, and measuring the ruler and measuring and measuring the ruler graduated in 0.5 mm, graduated in 0.5 mm, 0.5 mm division of steel, division of steel. First point. Second point, for Warpage test sample consists of, for Warpage test sample consists of, for Warpage test sample consists of 10 bricks. For Warpage test sample consists of 10 bricks. नेक्स्ट कहाँ से लोगे? फ्रॉम अ लोट। अरे इसकी वो भी कहानी बतानी है आपको, चलो इसके बाद लिखवा देता हूँ नोट में। तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट है कनकेव वार्पेज। अब कनकेव वार्पेज, concave warpage, the flat surface of brick is placed, the flat surface of brick is placed, the flat surface of brick is placed along the surface to measure the, along the surface along the surface to measure the along the surface to measured the flat surface of brick is placed along the surface to be measured, जिसको measure करना, to be measured, selecting the location that gives the, selecting the location to be measured, selecting the location that gives the great deviation, that gives the great deviation. Deviation from straightness, from straightness, ठीक है, from straightness. Next, the greatest distance of brick surface, हो गया ना, लिख लिया, the greatest distance of brick surface, of brick surface, the greatest distance of brick surface from the edge of straightness, from the edge of straightness, the greatest distance of brick surface from the edge of straightness is measured by steel roller, measured by steel रूलर। पांचवा पॉइंट, पहला कनकेव बताया, अब कन्वेक्स लिख लो। कन्वेक्स वारपेज, कन्वेक्स वारपेज कन्वेक्स वारपेज के बारे में, द ब्रिक इज प्लेस्ड, the brick is placed on the plane surface, on the plane surface with convex
warpage. The brick is placed on the plane surface with convex warpage. With convex surface लिखो, warpage तो पूरा हो जाएगा, convex surface. With convex surface, ठीक है. In contact with the flat surface. In contact with the flat surface and measured from flat surface and measured from flat surface, the largest distance is reported as the largest distance is reported as warpage. The higher of distance measured in the higher of distance measured in convex and concave, measured in convex and concave, measured in convex and concave, warpage test is warpage. चलो खत्म कहानी. हो गया. चलो समझते हैं इसको. अब आपको एक इमेज बना दूं. पहले मैं इमेज बनाओ, जैसे कभी ना कभी जूते की शॉप पे तो गए होगे जूते लेने के लिए. जूते लेने के लिए जाते हो तो पैर नापता है वो किसी से, स्टील का, देखा है जिसमें पैर रखते हैं, 9 नंबर है क्या 8 नंबर है, नापता है ना वो. भी वैसा ही एक ये वार्पेज टेस्ट होता है. जो इसका इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर हम ईंट रखते हैं, समझ गए. वैसा ही होता है, या ग्लास का होता है या वही सेम होता है, वैसा होता है. अल्टीमेटली मैं एक रिलेट कर रहा हूँ, भाई वैसा ही होता है जिसके ऊपर हम जैसे ईंट रखते हैं, उसको समझने के लिए. समझ गए बात. चलो अब स्टार्ट करते हैं कहानी को. कहानी स्टार्ट करते हैं. तो हो गया था यहाँ से. अब वार्पेज ऑफ ब्रिक्स. अब वार्पेज ऑफ ब्रिक्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस. ये वही फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस है, बना के भी दिखा दूंगा अभी आपको. फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस मेजरिंग द रूलर ग्रेजुएटेड इन 0.5 mm डिवीजन ऑफ स्टील. जो उसमें डिवीजन दी होती है उसमें वो 0.5 की होती है, ये बता दिया उसने. नेक्स्ट बताया फॉर वार्पेज टेस्ट सैंपल कंसिस्ट ऑफ कितने ब्रिक्स लेनी है, 10 ब्रिक कम से कम लेनी है इसमें, फ्रॉम अ लोट, जिस लोट्स की बात कर रहे हो आप. नेक्स्ट बताया कनकेव. अब 2 टाइप की ब्रिक होती हैं, या तो कनकेव होगी या कन्वेक्स होगी, वो भी बना के दिखा दूंगा अभी आपको. तो या तो कनकेव वार्पेज है तो उसमें क्या करेंगे, द फ्लैट सरफेस ऑफ ब्रिक, जो फ्लैट सरफेस ऑफ ब्रिक का वो प्लेस करोगे अलोंग द सरफेस टू मेजर सिलेक्टिंग द लोकेशन दैट गिव्स द ग्रेट डेविएशन फ्रॉम द शेड. इसको समझने के लिए यार बना ही देता हूँ. कौन सा पहला है अपना कनकेव का. चलो कनकेव बना देते हैं पहले. इसमें बाहर और फोटो निकालो, फोटो ही निकाल देता हूँ. चलो अब ये देखो, ये मैंने दिखा दिया आपको. ये वेज दिखा रखा है आपको, जो वेज शेप है, जो जैसे वो शूज़ का स्टैंड होता है वैसे ही वेज का शेप होता है, जिसके ऊपर हम ब्रिक को प्लेस करते हैं. और ब्रिक को प्लेस कैसे करते हैं ये आपको दिखा रखा है. ये आपको ये वेज बना रखा है और इसके ऊपर ये शेप है कनकेव और कन्वेक्स, दोनों शेप दिखा रखे हैं. तो इन दोनों को डिफाइन करूंगा मैं कैसे करते हैं. तो नेक्स्ट बताया, इसके लिए मैंने कहानी बताई. जो आपकी कनकेव वार्पेज है इस पर क्या करना है, फ्लैट सरफेस किसका, ब्रिक का. अब ब्रिक का फ्लैट सरफेस लेना है अपने को. जो फ्लैट सरफेस है वो प्लेस करेंगे किस पे, अलोंग द सरफेस. जो फ्लैट सरफेस जो ये नीचे वाला है उसके ऊपर प्लेस करेंगे. एंड मेजर दी सिलेक्टिंग द लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड गिव्स दी ग्रेटर डेविएशन. अब वहां से पता लग जाएगा ग्रेटर डायमेंशन कितनी है, पता लग ही जाएगा कहां से ऊपर है कहां से नीचे. तो डेविएशन पता लग जाएगी कौन सी ज्यादा है कौन सी नहीं है. नेक्स्ट बताया
नेक्स्ट बताया द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ ब्रिक सरफेस फ्रॉम द एज ऑफ स्ट्रेटनेस। देखो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा एज ऑफ द ब्रिकनेस से उसको मेजर कर लेंगे किससे, स्टील रूलर से। वो देख लेंगे कितने एमएम आ रही है डेविएशन जो है उसको मेजर करना होता है। नेक्स्ट बताया अगर यही चीज कन्वेक्स फार पेज होता तब क्या करोगे, द ब्रिक इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन सरफेस विद कन्वेक्स सरफेस। जैसे कन्वेक्स सरफेस वाला प्लेस रखेंगे, ये कन्वेक्स सरफेस वाला है ना, ऐसे प्लेस कर देंगे इसको, इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लैट सरफेस एंड मेजर्ड फ्रॉम द फ्लैट सरफेस। और मेजर किससे करोगे, फ्लैट सरफेस से। किसके, उससे। समझ रहे हो बात, फ्लैट सरफेस उसका भी तो हो सकता है। अब हर जगह से थोड़ी होगी, हर जगह से थोड़ी, एक जगह से फ्लैट भी तो होगी, वहां से मैक्सिमम डेविएशन होगी, तो उससे मेजर कर लेंगे। द लार्जेस्ट डिस्टेंस, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस आएगा उसको रिपोर्ट कर देंगे, वार पेज है। और इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा उसको बोल देंगे वार पेज, कंसीडर कर लेंगे। तो ये सारी कहानी है, अल्टीमेटली वार पेज को मेजर करना है आपने। समझ गए कैसे प्लेस करते हैं, एक बार वीडियो देख लोगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा सबका वीडियो, वो चेक कर लेना, सारी की सारी पता लग जाएगा वार पेज टेस्ट कैसे होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट टेस्ट लिखो, लास्ट टेस्ट है एफ्लोरेसेंस। 8 ही टेस्ट है इसके। लास्ट टेस्ट इज एफ्लोरेसेंस। लास्ट टेस्ट इज 8वां एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, अब एफ्लोरेसेंस नाम तो सुन ही लिया सबने, इसका टेस्ट कैसे होता है वो देख लेते हैं। करें, द एंड ऑफ ब्रिक्स, the end of brick is placed in the end of brick is placed in a 150 mm dia of porcelain or glass plate, porcelain और ग्लास प्लेट, पोर्सलिन और ग्लास डिश बोल सकते हो, ग्लास डिश या ग्लास प्लेट एक ही बात होती है, तो डिश ही ले देता हूं। डिश कंटेनिंग 25 mm ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, कंटेनिंग 25 mm ऑफ ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। हो गया। एट रूम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, इस पे प्लेस कर देंगे। फिल द एंटायर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, एंटायर वाटर, टिल आएगा, फिल नहीं आएगा, टिल द एंटायर वाटर एब्जॉर्ब, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेती वो। सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर इज अगेन फिल्ड, द वाटर इज again filled to 25 mm depth, to 25 mm, the water is again filled to 25 mm depth and allowed to absorb by, and लिख दिया, allowed to absorbed by brick, यहाँ लिख देना and allowed to absorbed by brick। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज बिलो। अब यहाँ से सवाल आया पिछली बार, प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज बिलो, इज क्लासिफाइड एज बिलो। अब यहाँ से सवाल क्या आया है, अब देखो मैं आपको चार्ट बनवा रहा हूँ जिसमें से एक सवाल बनेगा, स्टार लगा लेना उस चार्ट पे, ठीक है ना, एफ्लोरेसेंस का। चलो इस पे चार्ट आ रहा है, इस पे फर्स्ट एफ्लोरेसेंस नील कब होगी, एफ्लोरेसेंस नील कब होगी, व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस, व्हेन द डिपॉजिट
ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्या बोलते हैं इसको, इम्परसेप्टेबल या imperceptible. Second, efflorescence is slight. कब? पहले तो सेम लिखो, डज नॉट कवर मोर देन 10% ऑफ एक्सपोज एरिया, ऐसे लिख देना। ये तो सेम हो गया। एंड इसके बाद एफ्लोरेसेंस एंड डज नॉट कवर more than 10% of exposed area, more than 10% of exposed area of brick. Third है moderate में लिखोगे इट कवर्स मोर देन 10%, यहां लिख लेना, इट कवर्स मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक। चौथा लिखोगे हैवी में लिखोगे इट कवर्स मोर देन 50% एरिया, मोर देन 50% बट डज नॉट पाउडर। इस पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, डज नॉट पाउडर और फ्लैकी, डज नॉट पाउडर और फ्लेक अवे द ब्रिक सरफेस, फ्लेक अवे, दिस इज फ्लेक अवे द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट सीरियस में लिख लो, when the deposit are heavy and powder are flaky surface are obtained, powder of flake surface is obtained, चलो लिख लो इसको। इसके लिए नोट हो जाएगा, नोट लिख लो, उसके लिए खत्म करते हैं उसको। हो गया, नोट यहाँ से एक सवाल आएगा, ठीक है क्या, कंफर्म। नोट लिख लो, नोट में लिखेंगे द स्पेसिफिकेशन लिमिट ऑफ एफ्लोरेसेंस, the specification limit of efflorescence to be not more than 50%, not more than moderate बोल देते हैं, not more than moderate में कितनी परसेंट थी, 10 to 50% है, 10 से 50% के बीच में, अप टू क्लास 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अप टू क्लास, अरे क्लास ही लिखना है तो न्यूटन पर एम स्क्वायर काट दो, क्लास लिख दिया ना, वो तो होती है, स्ट्रेंथ होती है ना उसकी, अप टू क्लास 12.5, ठीक है, क्लास टू 12.5 एंड नॉट मोर देन स्लाइट फॉर हायर क्लासेस, एंड
नोट मोर देन स्लाइट फॉर हायर क्लासेस। चलो देखो इसको करें स्टार्ट। ठीक है, चलो ये कहानी देखो। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है फ्लोरेसेंस। क्या होता है फ्लोरेसेंस? जो वाइट वाइट से धब्बे आ जाते हैं, देखिए ना, तो जो स्टेन्स आ जाते हैं उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब जो एंड, अब क्या करना है इस टेस्ट के लिए? आपको ब्रिक को ऐसे रखना है, एंड समझ रहे हो, ऐसे खड़ी कर देनी है। किसके अंदर? द एंड ब्रिक इज प्लेस्ड इन 150 mm डाया। एक पोर्सलिन प्लेट होती है या डिश हो सकती है, जैसे पोर्सलिन की बनी हो या ग्लास की बनी हो। अब उसके अंदर क्या करोगे? प्लेस कर दोगे, जिसके अंदर 25 mm पानी लेना है। कितना? इतना। ये ऐसे ब्रिक पर ही है, इतना पानी, 25 mm पानी ले लो। 25 mm पानी ले लिया एट रूम टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। टिल दी, ये जब तक पड़ा रहेगा जब तक कि सारा सारा पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो तो कर ही लेगी, ईटें तो कर ही लेती हैं, तो अब्जॉर्ब कर लेगी अप टू द कितना पानी, क्या बोलते हैं, सो टिल दी, क्या बोला मैंने यार, टिल दी एंटायर वाटर इज अब्जॉर्ब। ठीक है, सारा सारा जब तक पानी अब्जॉर्ब नहीं कर लेती। द वाटर इज अगेन, उसका अब्जॉर्ब करने के बाद फिर दोबारा से पानी को फिल करोगे। कितना? अगेन 25 mm। 25 mm किया एंड अलाउड कर दोगे। क्या कर दोगे? जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाए तो उसको छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड। अब फ्लोरेसेंस आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही पानी जब ऐड हो जाता है तो फ्लोरेसेंस आनी शुरू हो जाती है। अब फ्लोरेसेंस के लिए मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया। चार्ट में फ्लोरेसेंस के टाइप को जब नील कब बोलोगे? भाई इसमें फ्लोरेसेंस नहीं है। कब बोलोगे? जब डिपॉजिट ऑफ फ्लोरेसेंस आपको दिखेगी नहीं, जो व्हाइट धब्बे हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, मतलब आप उसको परसेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, तो उसको बोलोगे नील। अगर उसमें जो आपके फ्लोरेसेंस है स्लाइट है, तो स्लाइट में क्या होता है? उसमें 10% तो एक्सपोज एरिया कवर करता है, 10% तक भी, 10% एरिया व्हाइट हो जाएगा वो। नेक्स्ट बताया मॉडरेट। मॉडरेट क्या बोलेगा? 10% से ज्यादा और 50% से कम, उसको क्या बोलोगे? मॉडरेट। जब हैवी होगा वो 50% से ज्यादा कर देगा। और पाउडर और फ्लेक, अब क्या हो जाएंगे? ये पाउडर और फ्लेक जो है सरफेस नहीं होगा। फ्लेक्स मतलब पाउडर सा नहीं दिखेगा उसको अलग से आपको। व्हाइट व्हाइट पाउडर जो होता है, जब ज्यादा फ्लोरेसेंस होती है तो व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखने लग जाता है, वो नहीं दिखेगा। सीरियस किसको बोलोगे? डिपॉजिट हैवी होंगे, मोर देन 50% होंगे, और पाउडर और फ्लेक क्या दिखने लग जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। तो इन सबको बोलते हैं। इनसे एक सवाल पूछ लेगा। पिछली बार यूएससी में सवाल आया, भाई डिपॉजिट है हैवी, पाउडर और फ्लेक सरफेस दिख रहे हैं, तो कौन सी है? 4 ऑप्शन दी थी, इसमें से ये हैवी आना था उसको क्वेश्चन। देख लो, ये इसमें से सवाल आया हुआ है। अब कुछ भी पूछ सकता है वो, कहने मतलब ये है कंपटीशन में। समझ रहे हो ना बात? चलो नेक्स्ट। अब इसके लिए मैंने बताया, इसके लिए लिमिट बता दी। जो स्पेसिफिकेशन लिमिट ऑफ फ्लोरेसेंस है टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट, वो कोई भी जो ईट के लिए है वो क्लास 12.5 के लिए 50%, 10 से 50% के बीच में होनी चाहिए। अगर हायर क्लास की ब्रिक है तो स्लाइड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कहानी है। अब स्लाइड का मतलब बता ही दिया, समझ गए बात? चलो टेस्ट सारे खत्म हो गए आपके। नेक्स्ट, पानी वानी पी लो, फिर करते हैं स्टार्ट। एक लेक्चर इतना ही और लेते हैं। चलो, अब कहानियाँ लिखनी है बहुत सारी, रेडी हो जाओ। नेक्स्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक। अब यहाँ से भी एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, इसका कोड पूछ लिया एक क्वेश्चन में, पिछली बार कोड ही पूछ लिया इसका। बोला हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स का कोड क्या है? इसका क्ले का 2180। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को पढ़ना है ये सारा। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये लास्ट टॉपिक है अपना, दिस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट इज हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। कोड साथ साथ लिखवा रहा हूँ इसका, ठीक है क्या? इसका कोड भी याद करने हैं अपने को। इसका कोड है अपना IS 2180 ना। इसका सीमेंट का है तो 2180 लिख लो, सिर्फ 2180। इसका कोड का नाम है अपना HDBCB। पोज कर लो क्या? स्टार्ट करो। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। स्पेशल टाइप ब्रिक्स में फर्स्ट ब्रिक है मेरी हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक। इसका जो कोड ऐसा बोलेंगे, देखो H, अब IS नहीं है इसमें, HDBC, ठीक है क्या? HDBCB 2180।
ये हो गया, मतलब हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करें इसको। पीछे मैंने बर्न्ड क्ले ब्रिक करवाई थी ना आपको, बर्न्ड क्ले ब्रिक करवा के टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में हुई है ना। चलो, दिस ब्रिक्स, दीज ब्रिक्स आर similar to, these bricks are similar to burnt clay bricks burnt clay bricks and are of burnt clay bricks and are of same size but with high compressive strength, with high compressive strength हो गया। नेक्स्ट, these are free from cracks and flaws, these are free from cracks or flaws etc. Next is, these are used in masonry, these are used in masonry in heavy engineering works, like bridges, industrial foundation, and multi-story buildings and multi-story building। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, हो गया, कितने पॉइंट हो गए इसके, 1 2। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज class 400 and class 450, class 450। compressive strength is, इसकी compressive, it is not less than, compressive strength is not less than 40 Newton per mm square, compressive strength is not less than 45 Newton per mm square, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, these are further subdivided, subdivided on the basis of tolerance limit, टॉलरेंस लिमिट के बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया है। और टॉलरेंस लिमिट में उसकी डायमेंशन है, डायमेंशन इन mm और सेंटीमीटर, डायमेंशन इन सेंटीमीटर, सॉरी 90 वो था ना, ईंट का साइज जैसा था, डायमेंशन किस में ली थी, सेंटीमीटर में। और इसकी जो डायमेंशन है सब क्लास ए और सब क्लास बी, टॉलरेंस लिमिट, दिस इज टॉलरेंस लिमिट में भी सब क्लास ए सब क्लास बी, टॉलरेंस लिमिट यहाँ लिखेंगे, दिस इज सब क्लास ए, दिस इज सब क्लास बी, ये लिख लो। अब इसकी जो डायमेंशन अगर है अपनी 9 और 19 है, सब क्लास ए है अगर ब्रिक तो ±3 ±6 mm, और सब क्लास बी है तो ±7 एंड ±15। तो आपको ध्यान रखनी है, इसके बेस पे भी पूछ लेगा आपसे।
कौन सी हैवी ड्यूटी ब्रिक है? अगर उसकी डायमेंशन 19 सेंटीमीटर है, देख रहे हो, या उसकी डायमेंशन 9 सेंटीमीटर है, तब सब क्लास ए होगी तो इतनी टॉलरेंस होगी, सब क्लास बी होगी तो इतनी टॉलरेंस होगी। और टॉलरेंस वाली कहानी बता रखी है मैंने। कैसे करते हैं डायमेंशन टेस्ट? कैसे करते हैं? क्या करते हैं, 20 ब्रिक को एक साथ लगा देते हैं, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, हाइट वाइज, उसमें टॉलरेंस की लिमिट चेक करते हैं। वही सारी कहानी है, समझ गए ना? ये सारी कहानी बता रखी है मैंने। चलो नेक्स्ट लिखो, वाटर एब्जॉर्प्शन। हो गया इतना पॉइंट? नेक्स्ट इज वाटर absorption is less than 10% after 24 hours of immersion of water. After 24 hours of immersion in water, efflorescence should be nil. Should be nil. Efflorescence should be nil. Bulk density should be less than 2500. Bulk density should be less than 2500. kg पर मीटर क्यूब। बस हो गया, खत्म, पहली ब्रिक खत्म होगी। लिखवाता जाऊँ, 3-4 लिखवा दूँ, फिर बता दूँ। कुछ है नहीं, मतलब कहानी है सारी की सारी, बस कहानी पढ़नी है आपको, ठीक है ना? पहली ब्रिक की टाइप होगी। चलो देख लो यार, फटाफट से बता ही देता हूँ एक बार। फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स इज हैवी ड्यूटी बंट क्ले ब्रिक। हैवी ड्यूटी ब्रिक बंट क्ले ब्रिक जो है वो बंट क्ले ब्रिक की जैसी है, जो पीछे पढ़ा रखी है, ठीक है। एंड आर साइज भी सेम है उसका, जितना उसका साइज था इतना ही इसका साइज है, बट विद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एंड ये क्रैक्स से फ्री होती है। क्रैक्स हो गया, जो फ्लोज जो उस पर बनते हैं वो सब फ्री है। फ्लोज मतलब जैसे क्रैक होते हैं वैसे ही साइड साइड में जो अलग हो जाती है, उसको क्रैक का ही टाइप है एक फ्लोज, ठीक है। दीज हाँ वो साइड साइड टूट जाती है, फ्लोज हो गए। दीज आर यूज्ड इन मैसनरी, इन क्या बोला, हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स। हैवी इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिजेस, इंडस्ट्री की फाउंडेशन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब इसमें क्लास 400 और क्लास 450 है। यहाँ पे वहाँ पे क्लास 12.5 या क्लास होती तो उतनी स्ट्रेंथ ले लेते थे। यहाँ पे क्लास जो 400 है उसकी स्ट्रेंथ लेस देन 40 न्यूटन पर एम²। क्यों? ये जो 400 है वो KGF है। अल्टीमेटली इसको इसने कन्वर्ट कर रखा है। इसके 400 को 40 लेता है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये मिनिमम की बात कर रही है। इट इज़ नॉट लेस देन 45 से कम नहीं होनी चाहिए भाई, इससे कम नहीं हो सकती इसकी स्ट्रेंथ। तो ये क्लास 400 450 हाई स्ट्रेंथ वाली वो होगी इसमें। नेक्स्ट, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस लिमिट। अगर डायमेंशन उसकी 19 या 9 है, अगर 9 है विड्थ और 19 उसकी लेंथ है, तो सब क्लास ए और सब क्लास बी को मेंशन कर रखा है। सब क्लास ए में जो टॉलरेंस लिमिट आएगी तो +-3 लेके चलेंगे, इसमें +-6, उसके अंदर +-7, इसका +-15। वो सारी कहानी बता रखी है मैंने कैसे करते हैं। 20 ब्रिक लेते हैं, 20 को गुना करेंगे, टॉलरेंस लिमिट कितनी आ रही है वो चेक करेंगे। अगर डायमेंशन को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो लोड को कैंसिल कर देंगे। वो सारी कहानी मैंने बता रखी है। सबसे पहले डायमेंशन टेस्ट किया था ना, उसी के बेस पे है। यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो लेस देन क्या रहेगी, 10% रहेगी आफ्टर दी 24 आवर्स ऑफ द इमर्शन ऑफ वाटर। फ्लोरेसेंस शुड बी नील। इसमें फ्लोरेसेंस क्या रहती है, नील रहती है। तो आपको सब कुछ सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बल्क डेंसिटी कितनी है, 2500 kg पर मीटर क्यूब। ये सारी चीजें ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, ये सारी कहानी होगी। अब आ जाओ वहां पे याद है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी, मैक्सिमम हाई क्लास कितनी बताई थी वहां पे? अरे पीछे क्लासेस लिखवाई थी, 12.5 से शुरू की थी, क्लास 12 35। वो मैक्सिमम कितनी थी, 35 से भी ऊपर है। बड़ी कौन सी, हैवी ड्यूटी। कितनी है इसकी स्ट्रेंथ, 40 है इसकी, देख रहे हो, कम से कम 40 है। तो ये 35 से ज़्यादा वाली होगी। क्लासेस मैंने वैसे कोड में 35 तक मेंशन है। कुछ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ 35 से भी ज़्यादा होती है, तो ये ब्रिक्स 35 से भी ज़्यादा वाली है। समझ गए ना बस? चलो ये सारी कहानी होगी। अब आ जाओ बंट क्ले परफोरेटेड ब्रिक। नेक्स्ट इज बंट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स।
इसका जो कोड है अपना, कोड लिखोगे दिस इज BCPB 2222, याद रखना इसको। ठीक है, ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। These bricks have cylindrical holes, these bricks have cylindrical holes, these bricks have cylindrical holes throughout their thickness, throughout their thickness, throughout their thickness, throughout their thickness. Next, throughout their thickness, have high compressive strength, have high compressive strength and have high compressive strength and less water absorption, less water absorption. ठीक है, next, these bricks are light in weight, these bricks are light in weight, require less quantity of clay, require less quantity of clay, and get dried and burnt easily and get dried and burnt easily. हो गया, get dried and burnt easily. Next, easily and economically, area of perforation should not exceed, area of perforation should not exceed area of perforation should not exceed 30 to 40% of area of 30 to 40% of area of face. This is the first point, second point and third point. Area of face. In case of rectangular perforation layer, कौन है? अच्छा, in case of rectangular perforation, in case of rectangular perforation layer, in case of rectangular perforation layer, in case of rectangular perforation layer, dimension should be parallel to dimension should be parallel to longer side of brick, longer side of brick. ठीक है, longer side of brick. अब next लिखो, ये भी हो गया. These are used in building walls. लिख ले इतना. These are used in
these are used in building walls, partition wall, partition wall. नेक्स्ट इज टॉलरेंस लिमिट के डिफाइन कर रखा है मैंने, ये टॉलरेंस लिमिट के बेस पे. दिस इज डायमेंशन, डायमेंशन और क्या लिखवा था मैं, टॉलरेंस. टॉलरेंस, इसकी डायमेंशन और टॉलरेंस पे लिख लो. डायमेंशन एंड टॉलरेंस दैट इज 9 एंड 19. 9 और 19 सेम सी है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 7 दोनों ध्यान रखोगे, प्लस माइनस 7. चलो लिख लो इसको. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन शुड नॉट एक्सीड, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन should not exceed 500 mm square. 500 mm square. Compressive strength is less than 7 Newton per mm square. Compressive strength is less than 7 Newton per mm square. Efflorescence is, अब ये बताओ मुझे, अगर एफ्लोरोसेंस लेस देन 15% है तो कौन सी एफ्लोरोसेंस कहलाएगी वो. अब इसने बोल दिया एफ्लोरोसेंस लेस देन 15% है, आपसे पूछ लेगा अगर एफ्लोरोसेंस 15% से कम है तो किस रेंज में आएगी. अभी तो लिखवाई है, पहले नील, उसके बाद मॉडरेट बताइए. नील के बाद कौन सी बताइए, स्लाइट, फिर मॉडरेट बताइए ना आपको ये सारी. तो मॉडरेट कंडीशन क्या थी, 10 से 15% के बीच में थी, 10 से 50 के बीच में, तो लेस देन 15% वाली क्या आ जाएगी यहाँ पे, लिख लो मॉडरेट. तो ऐसे ही सवाल बनेंगे, इसी में यूज करके पूछता जाएगा. नेक्स्ट, वार्पेज इज लेस देन 3%. वार्पेज 3%. चलो ये सारी कहानी होगी. हो गया. चलो कहानी पढ़े. चलो कहानी देखो. कहानी कहती है, अब जो बर्न्ट क्ले परफोरेशन ब्रिक्स जो है, वो परफोरेशन ब्रिक पढ़ रखी है आपने, परफोरेशन हो जाती है उसके अंदर. अब यहाँ पे क्या है, परफोरेट ही करनी है. ये ब्रिक्स कैसे होल्स हैं इसके अंदर, सिलेंड्रिकल होल्स हैं. सिलेंड्रिकल होल्स हैं इसके अंदर, थ्रू आउट देयर थिकनेस के अराउंड. अब थिकनेस के अराउंड कैसे होंगी, अब अगर मैं आपको एक ब्रिक बना के दिखाऊं, ट्राई करता हूँ, बनती है तो ब्रिक. चलो हम तो सीधी बना लेते हैं यार. दिस इज द ब्रिक, ठीक है, दिस इज द ब्रिक. ज़्यादा बड़ी दिखा दी क्या, चलो ये ब्रिक है, ब्रिक होगी. अब ब्रिक में ये देखो, ये क्या है इसकी लेंथ, ये क्या है इसकी थिकनेस, या हाइट ले लो, या ये क्या है इसकी विड्थ, ये विड्थ वाइज ले ली, ठीक है. अब या इसको थिकनेस ले लो, थिकनेस है ना, इसको थिकनेस लो, इसको विड्थ ले लो, ठीक है. ये थिकनेस है, मतलब जो उसकी थिक है वो थिकनेस दिखा रखी है मैंने. अब इसने क्या बोला, पहली लाइन इसने बोला कहाँ है, यही है ना, दिस ब्रिक्स आर लाइट, दिस ब्रिक्स हैव सिलेंड्रिकल होल्स थ्रू आउट देयर थिकनेस. पूरी थिकनेस के अराउंड क्या है, सिलेंड्रिकल होल्स है. तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल होल्स कहाँ होंगे, इसकी थिकनेस के अराउंड, समझ रहे हो, ये अंदर तक जा रहे होंगे. अरे बात समझ गए, ये समझाने के लिए किए, ये ऐसे लगे हुए हैं, समझ गए ना बात. नेक्स्ट बताया, दीज ब्रिक्स हैव सिलेंड्रिकल होल्स थ्रू आउट देयर थिकनेस, हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर अब्जॉर्प्शन कम है इसकी. नेक्स्ट, दीज ब्रिक्स आर लाइट इन वेट. ये वेट कम हो जाएगा, क्यों, मटेरियल कम हो गया, वेट कम हो गया, इसका डेड लोड कम हो गया. एंड रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ, क्या है, क्ले की क्वांटिटी क्या है, लेस यूज करता है. एंड गेट डिजायर्ड एंड बर्न इजिली, वो जल्दी बर्न हो जाती है और इकोनॉमिकली पड़ती है हमारे को ये. नेक्स्ट, एरिया ऑफ परफोरेशन शुड नॉट एक्सीड. जो परफोरेशन हैं वो 30 से 40% ऑफ द एरिया ऑफ फेस, पूरे फेस के 30 से 40% में परफोरेशन होती है. समझ गए बात, ये भी आपको ध्यान रखना है. इन केस अगर कहता परफोरेशन रेक्टेंगुलर दे दी तो क्या होगा, शुड जो अपनी क्या बोला, डायमेंशन शुड बी पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ ब्रिक. बात समझे आपको, जो आपके अगर रेक्टेंगुलर आपने करने हैं तो रेक्टेंगुलर जो होंगे वो
किसके पैरेलल होंगे? लोंगर साइड के। वो कैसे बनाऊं? अरे कैसे बना दूं? अगर मुझे रेक्टेंगुलर बनाने हैं तो लोंगर साइड के पैरेलल लेने हैं, कैसे बना दूं? इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर परफोरेशन, अब परफोरेशन कैसी है? रेक्टेंगुलर है, जो डायमेंशन शुड बी पैरेलल टू द लोंगर साइड ऑफ ब्रिक, जो उसकी डायमेंशन होगी लेंथ के पैरेलल अपन ने क्या बनाने हैं? होल बनाने हैं। समझ गए? रेक्टेंगुलर होल जो होंगे वो लेंथ के पैरेलल होंगे। अब मैं शो नहीं कर सकता, बट आप समझ जाओ भाई, उसके वो सारे के सारे जो होल्स होंगे वो अंदर तक जा रहे होंगे। कैसे? ऐसे, समझ रहे हो ना? वो लेंथ के अलोंग जाएंगे। इसका मतलब वो छोटे वाले थिकनेस पे होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ये ब्रिक है तो अगर मैं यहाँ बना दूँ तो उसके पैरेलल जाएंगे सीधा। समझ गए बात? तो अगर रेक्टेंगुलर बनाने हैं तो आपको पैरेलल लेने होंगे किसके? लेंथ साइड के। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट बताया, दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स में यूज करते हैं। टॉलरेंस के बेस पे डायमेंशन अगर 9 और 19 है तो टॉलरेंस इसकी +-4 और +-7 रहेगी। नेक्स्ट बताया, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन शुड नॉट एक्सीड 500 mm² से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट बताया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है? <7, एफ्लोरेसेंस <50। अब ये नहीं है अभी एक बार में याद हो, मैं मान रहा हूँ एक बार याद नहीं होती सारी चीजें, आपको जैसे जैसे सवाल लगाते जाओगे वैसे वैसे याद होती जाएंगी। तो सवाल नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं, फायदा ही नहीं है इसका BMC का। समझ गए ना आप? चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक इज बर्न्ट क्ले फेसिंग ब्रिक। अब फेसिंग के लिए काम करती है ये। दिस इज बर्न्ट क्ले फेसिंग ब्रिक। बर्न्ट क्ले फेसिंग ब्रिक। मैसेज करता हूँ क्या? चलो हो गया। नेक्स्ट इज बर्न्ट क्ले फेसिंग ब्रिक। इसका जो कोड है दिस इज 2691। अब सीधा ही लिख रहा हूं मैं, वो नहीं लिख रहा हूं। चलो these bricks are used used in the exposed face of masonry, used in exposed face of masonry. These bricks are used in exposed face of masonry without any surface protection. Without any surface protection. Next, क्या? Without any surface protection. First point. Second लिखें in corrosive atmosphere. In corrosive atmosphere, high-rise building and high-rise in corrosive atmosphere and high-rise building, use of facing brick is economical. Use of facing brick is economical. Next, तीसरा point, water absorption is less than 15%. Water absorption is less than 15%. इसी में प्रॉपर्टी लिख देता हूँ सारी। एफ्लोरेसेंस नील रहेगी इसमें, नो एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस नील। नेक्स्ट इज वार्पेज इज लेस देन 2.5 mm. वार्पेज इज लेस देन 2.5 mm. पीछे परसेंट लिखवा दिया मैंने, mm कर लेना उसको, ठीक है क्या? पीछे मैंने परसेंट लिखवा दिया, वार्पेज में mm कर लेना उसको, ये mm कर लो, ठीक है? नेक्स्ट, चलो ये भी होगी कहानी। और क्या बताएं आपको? बर्न्ट क्ले। अब लिख लो इसकी क्लासिफिकेशन।
these are also classified as these are also classified as class 1 and class 2. Class 1 and class 2. This is compressive strength is greater than 10. This is compressive strength is greater than 10 Newton per mm square, and compressive strength क्लास 2 में इसकी हो जाएगी ग्रेटर देन 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ठीक है. These bricks should be free from cracks and flaws. These bricks should free from cracks and flaws. हो गया. चलो इसी कहानी भी देख लो फटाफट से. हो गया. चलो कुछ नहीं बताया इसमें भी, इसकी सीधे प्रॉपर्टी बताई है. अब बर्न्ड क्ले फेसिंग ब्रिक, फेसिंग मतलब फेस पे लगाई जाती हैं, जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होती हैं. या अब यहाँ पे फेस पे लगाई गई हैं बट इसका अलग मोटिव है. अब मोटिव क्या है? दीज ब्रिक्स आर यूज्ड इन एक्सपोज्ड, These bricks are used in exposed face of masonry without any surface protection. बोले ये ब्रिक्स वहाँ यूज़ की जाती हैं जहाँ पे एक्सपोज्ड है, मतलब बाहर की तरफ आपको रखनी है. अब ये कहाँ यूज़ होती हैं? जहाँ पे कोरोजन एटमॉस्फेयर हो और हाई राइज बिल्डिंग हो. अब हाई राइज बिल्डिंग बनानी है आपको, वहाँ पे आप पेंट नहीं करवाना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पेंट की. उस जगह पे क्या करते हैं हम लोग? ये वाली ब्रिक्स लगा देते हैं. नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लास्टर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग. तो उस केस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे ये ब्रिक यूज़ कर देते हैं, तब इकोनॉमिकल बढ़ती है. ये नहीं है आप एक वॉल के लिए आप लगा रहे हो, वहाँ पे महंगी पड़ जाएगी. वो पेंट लगाने के बाद भी महंगी पड़ जाएगी. मतलब अगर आप सिंपल ब्रिक पे पेंट कर देते तो ज़्यादा कम खर्चा पड़ जाता, वो लगाने में इतना खर्चा पड़ जाता है. अगर हाई राइज बिल्डिंग में बल्क में यूज़ करनी है तो ये सस्ती पड़ती है काफ़ी. समझ गए. नेक्स्ट, इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन क्या रहेगी? लेस देन 15%. एफ्लोरेसेंस नील रहेगा. वार्पेज इज लेस देन 2.5. ठीक है. नेक्स्ट बताया, इसको क्लास के हिसाब क्लास के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया. क्लास 1 में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड क्लास 2 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर. नेक्स्ट बताया, ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम द क्रैक्स एंड फ्लॉज. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक. चौथी है मेरी. दिस इज बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक. बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक, इसका कोड लिख लो 3583. दिस इज 3583. ठीक है. इन दिस ब्रिक्स आयरन कंटेंट, इन दिस ब्रिक्स iron content is more than that in iron content more than that in ordinary concrete. In ordinary concrete. Second is कौन है? नेक्स्ट इज एक्सेसिव आयरन कोज. बैठ जाओ. एक्सेसिव आयरन cause vitrification. Excessive iron cause vitrification of bricks. While excessive iron cause vitrification of bricks while burning at low temperature. While burning at low temperature. ठीक है. and give natural glaze to the brick. चमक दे देगा ये. give, इसके बाद भी लिख लेना, give natural glaze to the brick. ठीक है.
Next, paving bricks are manufactured from paving bricks are manufactured from surface clay. Next, these are generally burnt in continuous kiln in 7 to 10 days. चलो, फोर्थ हो गया। उसके बाद टॉलरेंस के बेस पे डिफाइन कर रखा है इसको। फिफ्थ इज टॉलरेंस के डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या रहेगी ईट की? 19.5, 9.5 और ये भी है N9 सेंटीमीटर। 4 आना चाहिए था। ठीक है। +- 6 +- 3 +- 3 +-6 +-3 +-3 9। ठीक है, ये चल जाएगा। चलो हो गया, बस हो गया कंप्लीट सीपी। ये हो गया बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक। नेक्स्ट लिखवा दूंगा एक बार फटाफट से, थोड़ा खत्म करते हैं। फिफ्थ टाइप इज बर्न्ड क्ले सॉइलिंग ब्रिक। बर्न्ड क्ले सॉइलिंग ब्रिक, इसका है 5779। दिस इज कोड इज 5779। ठीक है, इसमें लिखो दीज आर यूज्ड फॉर सॉइलिंग ऑफ रोड्स। These are used for soiling of roads. Compressive strength is greater than 5 Newton per mm square. Compressive strength is greater than 5 Newton per mm square. ठीक है। Water absorption is less than 20%. Water absorption is less than 20%. Efflorescence कैसी रहेगी? Slight. Efflorescence less than slight. Slight से कम रहेगी, ये लिख लो। Efflorescence is less than slight. ठीक है। नेक्स्ट, burnt clay hollow bricks। अभी इससे सवाल आया पिछले साल, अभी इससे हर साल सवाल आ रहे हैं, तभी बताया ये। burnt clay hollow bricks। burnt clay hollow bricks, अब इसका नाम पूछ लिया था। हाँ, अगला टाइप 3952। अब इसका सवाल पता क्या आया? इसका दूसरा नाम बताओ। इसका दूसरा नाम होता है सेलुलर ब्रिक्स। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है इसका। लिख लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, बस यही चीजें घुमाता रहेगा, कभी नई चीज पूछ लेगा हर बार। दीज आर द ब्लॉक्स, दीज आर दी ब्रिक्स, लिख लो ब्रिक्स। These are the bricks blocks. These are the bricks blocks known as cellular bricks. अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगा लो इस पे, पिछले साल क्वेश्चन है ये। सेलुलर ब्रिक्स, ठीक है। और कैविटी ब्लॉक्स, सेलुलर ब्रिक्स और कैविटी ब्रिक्स, ठीक है। and are manufactured through a lump free well mixed clay, lump free well mixed
क्ले। लम्प फ्री मतलब जो लम्प्स बनते हैं वो नहीं होने चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सिमिलर टू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग is same as that of clay brick, same as that of clay bricks। हो गया। नेक्स्ट, used to reduce the dead weight, used to reduce the dead weight, used to reduce the dead weight। अब रह गया dead weight of masonry and partition wall, partition wall and masonry। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए? 1 2। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे they reduce the transmission of heat sound, they reduce the transmission of heat sound etc, heat sound etc। next is they are further classified as, लिख लिया? they are further classified as crushing strength is greater than 3.5, crushing strength is greater than 3.5 Newton per mm square। सेकेंड, उसके बाद है वाटर अब्जॉर्प्शन इज लेस देन 20%, वाटर अब्जॉर्प्शन इज लेस देन 20%। हो गया। नेक्स्ट अभी लिखवा दूँ फटाफट से, सैंड लाइम ब्रिक लिख लो फटाफट से, 2 और लिखवा देता हूँ। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए? 6 हो गए ना। 7th, सैंड लाइम ब्रिक, सैंड लाइम ब्रिक, सैंड लाइम ब्रिक में लिखो IS, इसका कोड है 4139 सैंड लाइम ब्रिक का। These bricks are also known as, these bricks are also known as calcium silicate, ये क्वेश्चन है ये भी, known as calcium silicate bricks। आपसे पूछ लेगा calcium silicate bricks किसको बोलते हैं? स्टार। These bricks are also known as calcium silicate bricks। It consists of intimate and uniform mixture of sand and lime, uniform mixture of sand and lime, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सिलिशियस सैंड आएगा। एक मिनट थोड़ा चेंज कर लो इसमें, मिक्सचर ऑफ सिलिशियस सैंड, दिस इज मिक्सचर ऑफ सिलिशियस सैंड एंड लाइम, या क्रश्ड सिलिशियस, इसका दूसरा नाम भी है बड़ा, क्रश्ड सिलिशियस सैंड एंड लाइम। मेरे को तो यही आता है सैंड और लाइम से मिक्सचर से बनती है, ये पता है, बस पूरा नाम बता दिया आपको। बाय द एक्शन ऑफ, अब जो हीट प्रोवाइड की जाती है किस एक्शन से प्रोवाइड की जाती है? बाय द एक्शन ऑफ स्टीम प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, बाय हीटिंग द मिक्सचर अंडर प्रेशर, ले लिया ये सेकेंड पॉइंट, बाय हीटिंग द मिक्सचर under pressure, by heating the mixture under pressure, hydrated silicates and aluminates, hydrated
hydrated silicates and aluminates are formed and which bind the sand grains together, ओके। नेक्स्ट इसी में लिखो यूज्ड फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन, सेम एज बर्न्ड क्ले ब्रिक, अरे बार फैन ऑन कर लो आराम से, ऑन है। बर्न्ड क्ले ब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉलरेंस के बेस पे लिख लो उसको, टॉलरेंस डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जो रहती है वो सेम रहती है। सेम अपनी ब्रिक कितने साइज की है, 19, 9 एंड 9, ठीक है। इसकी डायमेंशन जो रह जाएगी +-3, दिस इज +-3 +-2 +-2, दिस इज टॉलरेंस, ये आपको ध्यान रखनी है। चलो इतनी कहानी भी होगी। अब ये भी लिख लो इसके बारे में, एक और चीज़ है। नेक्स्ट इज दीज ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज, लिख लेना, दीज ब्रिक्स आर classified as depending on average compressive strength, depend upon average compressive strength, अब क्लास लिख लो इसकी, कौन कौन सी क्लास है। क्लासेस 75, 100, 150, 200, ये क्लासेज है। इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, दिस इज मिनिमम स्ट्रेंथ एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, मिनिमम स्ट्रेंथ इज 7.5, 10, 15, 20। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज, दिस इज 10, 15, 20 एंड ऑल्सो दी 20, ठीक है, ये रहेगी। तो अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी क्लास बोलते हैं 75, 100, 150, 200, इसकी स्ट्रेंथ होती है 7.5। ये एक्चुअली ये 75 जो होता है kgf पर मीटर क्यूब में होती है, kgf पर क्या बोलते हैं इसको, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो स्ट्रेंथ होती है, ये जो वैल्यू दी होती है अपन को kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें तो 75 ही होएगी, बट जब आप न्यूटन पर एम स्क्वायर में करोगे तो इतनी आएगी। दीज आर द न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये लिख लो। चलो ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, एवरेज ड्राइंग श्रिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज ड्राइंग श्रिंकेज लेस देन, एवरेज ड्राइंग श्रिंकेज लेस देन एज फॉलोज, लेस देन एज फॉलोज, लेस देन एज फॉलोज। क्लास है इसमें, दिस इज क्लास इज 75, 100, 150, 200। अरे वो तो उसमें लिख देते हैं, श्रिंकेज लिख रही थी तो ठीक थी। ड्राइंग श्रिंकेज, उसकी ड्राइंग श्रिंकेज लिख लो, दिस इज ड्राइंग श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम चेंजेस जो होंगे ड्राई होने की वजह से, 0.025, दिस इज 0.025, 0.035, 0.035, इसको याद करना है। चलो पहले इतनी कहानी बता देता हूँ, काफ़ी सारी ब्रिक्स होगी ऊपर। उसके बाद 8वीं 9वीं, चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद कर देंगे ऑफ। चलो कहाँ तक हो गया, यहाँ से चौथी से बतानी है क्या। चलो पेविंग ब्रिक्स से, यहीं से बतानी होगी। अब पेविंग ब्रिक्स, बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक्स। पेविंग ब्रिक्स मतलब जैसे फ्लोर के ऊपर पेविंग करते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे ब्लॉक्स हैं, जैसे कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, वैसे ही ब्रिक्स भी यूज़ की जाती हैं।
हाँ, जैसे ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं, जैसे ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं वैसे ही वो पेविंग के लिए ये ब्रिक्स यूज करते हैं हम लोग। अब इन दिस ब्रिक्स इसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट से ज़्यादा होता है। अब अगर ज़्यादा आयरन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, विट्रिफिकेशन। व्हाट इज विट्रिफिकेशन? विट्रिफिकेशन क्या होता है? अरे कल तो बताया यार, 3-4 बार यूज़ किया है, पढ़ के नहीं आया क्या? विट्रिफिकेशन वो होता है जिस प्रोसेस से ग्लास बनाया जाता है। ग्लास मतलब जिससे चमक आती है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा आयरन होगा तो विट्रिफिकेशन करेगा। विट्रिफिकेशन करेगा तो क्या होगा, जब बर्न करेंगे लो टेम्परेचर पे तो वो नेचुरली ग्लेज दे देगा। आपको ग्लेजिंग की जरूरत नहीं है, नेचुरली ग्लेज देता है ये जो है, समझ रहे हो, चमक मारता है। अब आपने कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं बाहर ईंटें लगी होती हैं, जैसे इम्पीरियम रेस्टोरेंट, वो इम्पीरियम है ना, जैसे बाहर ब्लॉक्स लगे हुए हैं जो, जैसे वो ऐसे स्ट्रक्चर के बाहर क्या करते हैं वो ये वाले वो यूज़ कर लेते हैं ब्रिक्स। उसमें क्या होता है, वो नेचुरली चमक मारते हैं, वो समझ रहे हो बात, उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। अब पेविंग ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दी सरफेस क्ले, ये सरफेस क्ले से बनती है। नेक्स्ट, दीज आर जनरली बर्न्ट इन कंटिन्यूस। अब ये कहाँ बनती है, कंटिन्यूस किल में। कंटिन्यूस किल की सारी कहानी पता ही है अपने को। अब कंटिन्यूस किल में कम से कम भी 7 से 10 दिन लग जाते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम लेती है बर्न होने में। नेक्स्ट बताया, इसकी टॉलरेंस लिमिट बता दी, साइज सेम रहेगा 19.5, 9.5 और 9 ये रहेगा। टॉलरेंस लिमिट +-3 +-6 पहले वाले में। बर्न, नेक्स्ट आ गया बर्न्ट क्ले सॉइलिंग ब्रिक। अब व्हाट इज सॉइलिंग ब्रिक? अब ये इसका जो कोड है 5779, दीज आर यूज फॉर द सॉइलिंग ऑफ रोड। सॉइलिंग क्या होता है, व्हाट इज सॉइलिंग? जो ब्रिक्स क्या करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं रोड को। पहले रोड़ी बिछाई जाती है ना, तो वो सॉइलिंग ही कर रहे हैं। कई बार ब्रिक्स भी बिछाई जाती हैं तो वो सॉइलिंग होती है। मतलब आपने रोड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है तो नीचे एक सरफेस जो है उसको बनाने के लिए वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सॉइलिंग बोलते हैं उसको। सॉइलिंग मतलब जैसे फाउंडेशन के नीचे बिछानी है या फाउंडेशन के साइड में बिछानी है, वो सारी सॉइलिंग है, वो समझ गए ना बात। नेक्स्ट बताया, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, ग्रेटर देन 5 न्यूटन पर एम² रहती है। वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन 20%, एफ्लोरेसेंस लेस देन स्लाइट रहती है। अब नेक्स्ट बताया बर्न्ट क्ले होलो ब्रिक्स। अब होलो ब्रिक्स क्या है, जैसे परफोरेटेड ब्रिक्स है वैसे होलो ब्रिक्स है, इसके होल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, दीज आर द ब्रिक्स, यहाँ ब्लॉक्स हैं जिसका दूसरा नाम क्या है, सेलुलर ब्रिक्स और कैविटी ब्रिक्स है। और मैन्युफैक्चर किससे होती हैं, जब लंप फ्री वेल मिक्स्ड क्ले होने चाहिए, बट लंप नहीं होने चाहिए। लंप मतलब जो लंप्स बन जाते हैं उसको रिमूव करने के बाद बनेगी ये। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सेम एज दैट ऑफ क्ले ब्रिक्स यूज टू रिड्यूस। अल्टीमेटली क्या करता है, होल ज़्यादा बड़े हैं तो डेड वेट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। पार्टीशन बोल के डेड वेट को रिड्यूस कर देगा, मैसनरी वॉल्स को। दे रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब ये कहाँ यूज होती है ब्रिक, जैसे थिएटर्स में। अब थिएटर में क्या करना है आपको, साउंड प्रूफ बनाना है, वहाँ पे ये ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं। अब आपको याद है जैसे पिछले ज़माने में क्या होता था, अब छतों पे क्या करते थे, छतों से गर्मी आती है। अब छतों से गर्मी आती है तो हम उसके लिए क्या करते थे, पहले मटके लगा देते थे। पहले क्या होता था, पहले मटके लगा देते थे। अब मटके लगाने में उसके अंदर मोटार भर देते थे, उसको कवर कर देते थे मोटार से, तो उसके बाद क्या होता है, हीट नहीं आती थी, ट्रांसफर नहीं होती थी। अल्टीमेटली वहाँ पे भी यही कर रहे हैं, होल्स, जैसे होल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ये होल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो ना बात, ये होल्स का ही काम है। अब इंजीनियरिंग आ गई है तो यहाँ पे ये ब्रिक्स बना दी, कैसी ब्रिक्स, बर्न्ट क्ले होलो ब्रिक्स। ऊपर अगर लगा देंगे उसके ऊपर मोटार कर दो, उसको हीट पास होगी नहीं इसके अंदर से, समझ गए ना बात। तो नेक्स्ट इज हीट और साउंड के लिए यूज होती है। नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट इज दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या रहती है, ग्रेटर देन 3.5 एंड वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन 20%। सो नेक्स्ट इज सैंड लाइम ब्रिक। अब सैंड लाइम ब्रिक क्या है, इसके लिए कोड जो है 4139। दीज ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सिलिकेट। अब कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स बोलते हैं, ये सवाल आया हुआ है। अब ये बनी किससे, सैंड और लाइम से। सैंड मतलब सिलिका, सैंड है तो सिलिका है, और लाइम है तो लाइम है ही पड़ा। तो इसमें जो लाइम है, अपना जो सिलिका है वो सैंड से, वो कैल्शियम सिलिकेट है, जो ओरिजिनल नेम है उसका। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ इंटीमेट एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ क्या क्या है, सिलिशियस सैंड। अब जो सिलिका है वो सिलिशियस सैंड के फॉर्म में है, और क्रस्ट, अब सिलिका सारा कहानी पता है सिलिका की, ठीक है। नेक्स्ट, लाइम बाय द एक्शन ऑफ स्टीम प्रेशर। इसमें क्या होता है, स्टीम प्रेशर के थ्रू बनाते हैं। अब हीटिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो स्टीम प्रेशर से करते हैं। पहले किससे कर रहे थे, पहले हम बर्न कर रहे थे वहां पे, अब किससे कर रहे हैं, स्टीम प्रेशर से कर रहे हैं। नेक्स्ट बताया, बाय हीटिंग द मिक्सचर अंडर द प्रेशर हाइड्रेटेड सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स आर फॉर्म। अब इससे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स। अब एल्यूमिना भी क्या देती है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करती है, बताया था ना, इंडेक्स स्ट्रेंथ इंपार्ट करती है। वो सारी कहानी सीमेंट से स्टार्ट होती है सारी। तो नेक्स्ट बताया, विच बाइंड द सैंड ग्रेन टुगेदर एंड यूज। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, सैंड ग्रेन को टुगेदर कर रहा है, बट वहां पे क्या कर रहा था, एल्यूमिना फ्यूज कर रहा था लाइम और सिलिका को, याद है। नेक्स्ट बताया, फॉर मैसनरी कंस्ट्रक्शन एंड सेम एज दैट ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स।
अब इसकी टॉलरेंस लिमिट के बेस पे डिफाइन है ये। अब डायमेंशन 19 है, टॉलरेंस लिमिट क्या हो जाएगी +-3 +-2 +-2। नेक्स्ट बताया दीज ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज डिपेंड अपॉन द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये अगर 75, 100, 150, 200 रहेगी तो मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी रहेगी, मैक्सिमम इतनी रहेगी, आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। और ड्राइंग श्रिंकेज इसकी वैल्यूज है। तो ये सारी चीज़ें आज इतना ही कर लो, 2-3 टाइप की रहेगी और कल टिम्बर भी स्टार्ट कर देंगे। कल आधे घंटे का एक्स्ट्रा लेके ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हेलो, चलो।